Now, second type of questions are in adjoint and inverse of a matrix. Problems based on finding matrix X satisfying equation AX is equal to B, where A and B are known as square matrix. A और B दोनों ही square matrix हो, either that is of 2 into 2 या 3 into 2. So such questions, how you have to solve, how you have to find out the value of this X. So this WR means working rule. So if A अपन आओ, A inverse X is then A X equal to B, यानी कि the determinant will be given. So on the basis of that you have to find out A determinant and A determinant, the value if it is coming -1 plus 1 या -2 plus 2 whatever is coming is not equal to 0, then in that case A inverse X is आपका हो जाएगा. तो then आपका देखो A X equal to B, again you have to multiply by A inverse on the both sides. आपका नाम सो देखो A inverse देखिए A into A inverse X equal to B into A inverse X, so in front of you here, and the value of A inverse equal to I, so we keep this I here, X equal to A inverse B. So now X equal to A inverse B. It means if AX is equal to B is given, then X you have to find out. So the X is equal to the value is A inverse B. Fine, A inverse and then A inverse B. A inverse आपने निकालना है. This will be the matrix X और वो आपको X matrix देगा. It means अगर आप slightly आपका if you remember this, if you memorize, तो आपका इसका मतलब यहाँ पे आपका multiplication rule लगना चाहिए. कायदे से. Okay, this is the question. अब ये अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो this is the concept. So using the concept of the inverse of the matrix, अपन यहाँ देखो this is the solve the matrix equation. ये बोर्ड और कंपार्टमेंट दोनों का क्वेश्चन है. तो ना 1 this is -4 3 -2 into this is x equal to -16 -6. It is -16 sir, -6 and 7 and 2. This is the now given me 1 -4 3 -2 into x equal to -16 -6 7 and 2. This was your question. So you see now where AX equal to B. So now look at this. So satisfying the equation AX equal to B. So now so therefore the value of A is equal to now this 1 -4 3 -2. It is of 2 into 2 matrix, and B matrix is what? This is -16 -6 7 2. It is also this is A into X if B हो गया. Clear? Then if you have to find out first of A, now this A determinant. A determinant is equal to this 1 into -2 and minus. When you are coming up, it will be positive. जब नीचे से लेंगे minus आपका -3 minus आपका now equal to 4. So A determinant has a value. Now this -2 minus का प्लस हो जाएगा क्योंकि देखो now this is right. तो A determinant की जो वैल्यू आएगी now it will be 10. तो 10 is not equal to 0. अपना तो hence अपना देखो A inverse exists. The same norms as earlier one, type 1 में जो थी अपना. अब now given equation is AX equal to ये B हो गया अपना. It means that according to the norms, अगर देखो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा तो therefore X is equal to A inverse आपका देखो B. अगर बाई द वे किसी बच्चे को नहीं आया समझ में तो उसको समझाने के लिए देखो आपका हाँ देखो X is equal to B, X is equal to देखो B upon आपका देखो this is the A. ये by cross multiplication में because this A is working as a coefficient of this X का coefficient गुणांक की तरह काम कर रहा है. So when it will come on the next hand, so it will go as a denominator of this B. तो आपका देखो ना this अब आपका देखो 1 upon x की power n equal to when it the power will go up तो देखो x की power minus n हो जाएगा. तो that's why a की power 1 है so it will go up and आपका देखो it will become x is equal to a inverse into ये आपका देखो b को
और वैसे भी अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप ये तो मतलब शॉर्टकट हो गया। वैसे तो आपको क्या करना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड। अपने ए इंटू ए इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। सो नाउ द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यू हैव टू पुट दिस आई। सो नाउ तो आई इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका नाउ हो जाएगा। सो यू हैव टू omitted दैट आई फ्रॉम दियर। सो नाउ द वैल्यू क्लीनली एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ रहा आपका नाउ। इट मीन्स अब हमें जो है इसका क्या करना है, क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। A11 वाले का जरा याद करेगा क्या था आपका ना, तो बता इसका मतलब अगर ए वाले की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, को फैक्टर ऑफ A11। ये जो आप देख रहे हैं आपका देखो ना, दिस ए इज इक्वल टू 1 -4 3 -2 इक्वल टू A11 A12 A21 A22 ऐसे लिख लीजिए आपका नाम देखो। तो अब A11 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A11, ये देखो इसका कोफैक्टर निकालो इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 into -2। If any negative number has an even power, answer is positive, positive, positive है plus। और if any negative number has an odd power, answer is आपका देखो equal। इसका मतलब this is -2। So now then again A12 is equal to cofactor of A12। A12 का क्या इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2। ऑड पावर आपका नेगेटिव आ गया और इनटू आपका नाम देखो दिस, ये है दिस, ये -1 ये 3 हो गया, तो ना दिस ये -3 हो गया। ऐसा करें so you'll go for this A21 is equal to आपका cofactor of A21 is equal to -1 की पावर 2 + 1 this 3। तो ऐसे गया, तो now you have to write here -4। if any negative number has odd power minus का आपका नाम देखो this is +4 हो जाएगा। 1 माइनस will come from here और आपका तो -1 का प्लस, and this A22 is equal to cofactor of A22 is equal to -1 की पावर 2 + 2 this 1 आपका है, तो now this अब पॉजिटिव हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। तो when you have to write B, B is equal to A11 A12 A21 A22। so the values of this you have to write here। so this is -2, it's -3, it's 4 and it's 1। yes sir। क्या चीज, इससे बी इनवर्स निकालेंगे ना, अभी देखते रहिए किससे। हाँ अब आप एडजॉइंट निकाल करके नहीं करेंगे आप। मैं कह रहा हूँ अगर बी को पहले से ले लिया तो इसको कुछ और लेना पड़ेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप अभी, वो तो अभी काम आ जाएगा कोई। हाँ आप ठीक करें, अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही तो इसको सी ले लो, आप सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी बात बराबर है कि आपका 20 सर दिया हुआ कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं। अब हायर लेवल में कोई कंफ्यूज नहीं करता, कंफ्यूज वही करेगा जब आप पढ़ने वाले बच्चे संडे को भी आ सकते, तो फिर कंफ्यूजन का तो कोई मतलब ही नहीं है यार। ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि बच्चों में कम से कम इतनी। अब यहाँ पे आप कहेंगे क्योंकि देखिए मैं नॉर्म्स के हिसाब से चल, आप एक से इक्वल टू सी कर दीजिएगा, इसको सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इज इट क्लियर? फाइन सर। तो ये आ गया। अब आप करेंगे ना, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे सर इसको ना, ए चेंज रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, ठीक है सर। तो दिस इज -2 -3 ठीक हो गया सर। अब आपको क्या निकालना था, ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर या ऐसे
और एडजॉइंट की वैल्यू -2 4। बताइए अब आपका क्या था, x इज इक्वल टू ये देखो आपका A इनवर्स B फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये x इज इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1/10 को आप ऐसे रेंज दीजिएगा, -2 4 -3 1 इंटू B। अब जो भाई साहब आपकी जो ये वैल्यू आ रही थी इस वाले को रखेंगे आप B कि बताइए किसको रखेंगे एग्जैक्टली आपका देखिए -16 -6 7 यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी रोज आपका ऐसे कॉलम के साथ आपका मल्टीप्लाई होंगे और प्लस और माइनस जो भी साइन होगा तो आपका x इज इक्वल टू ये 1/10 आ गया। इज इट क्लियर? अब -2 इंटू -16 और प्लस आपका 4 इंटू 7। This row will be multiplied with this one. Then you have to keep the gap here. Now look at this. So 2 -2 again -6 and plus after 4 into 2. Its work is over. The function of this 2 -2 and 4 after multiplication of this is over. Now you come to the second row. So -3 into -16 -3 into -16 plus 1 into 7. Then you have to give the little bit of the gap. This -3 into -6 rows and after then plus 1 into 2. This x is equal to 1/10. Clear sir? Now कितना है माइनस माइनस का प्लस, तो 16 2 जा 32 and 28 60. Am I right? Now this is 12 minus minus का plus and this 8 20 5 से 20 28 20 ऐसा नहीं 48 and this जी 48 plus 7 is 55. Okay. Now this is minus 18 or plus 2 is equal. X is equal. It will go up inside. Okay, 10, 20 by 10, 55 by 10, and 20 by 10. So therefore, x is equal to 6 2. Now this is so 2 कितना हुआ 11 by 5 11 by 2. Okay, 5 से आपने किया. Is it clear? So this was the value. तो देखो आपका solve the matrix equation आपका ना देखो this using the concept of आपका देखो. तो find A inverse and then find A inverse B. ये देखिए. Find A inverse B. This will give the matrix X. So this is the 2 into 2 किया. Obviously it will be of 2 into 2. So this is your answer. Yes sir. पढ़न बेटे जी हाँ इसका हाँ बेटे ये आपका एडजॉइंट है, ये एडजॉइंट के लिए निकालना है आपका नाम बस. तो हम इसे B दिएगा एडजॉइंट A भी लिख सकते. नहीं आप चाहें तो इसको आपका बी अगर कंफ्यूजन कर रहा है आप इसको सी ले लीजिएगा आपका नाम. तो ये एडजॉइंट तो आपका है, तब ये एडजॉइंट ए इस वर्ड आपका सी बार आ जाएगा, जैसे सी ट्रांसपोज आ जाएगा. बस इतना कर सकते हैं क्योंकि बच्चों की जैसे आप कह रहे थे कि ये बी यहाँ पे दिया तो कंफ्यूजन. एक्चुअल ये हम तो इस सिनेरियो से चल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे आप ए एक्स इज इक्वल टू आपका बी की जगह में सी कर सकते हैं. तो ये आपका x इज इक्वल टू आपका A इनवर्स C आ जाएगा कायदे से. लेकिन अब आप देखो क्योंकि B आपको क्लैश करेगा C क्लैश करेगा क्योंकि B की वैल्यू नहीं है इसलिए तब वो डबल B आपको दिखाई देगा. ओके अब मैं आपको आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन.
आप मुझे करके बताइएगा। फाइंड मैट्रिक्स ए satisfying फाइंड, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप मुझे करके बताएंगे। नाउ दिस फाइंड द मैट्रिक्स ए satisfying the matrix equation 2 1 3 2 into a into, ये आपका थे, फिर देखो दिस -3 to 5 -3 इक्वल टू 1 0 0 1। ये आप क्या समझ पा रहे हैं इससे, ये मुझे बताइए। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, एक ही वैल्यू निकालनी। फाइंड द मैट्रिक्स से, ये देखो यहाँ देख लीजिए क्या क्या है। 3 1, ये आपका सॉरी 2 1, दिस इज 2 1, ये 3 2 इंटू ए, और फिर इंटू -3 to 5, दिस इज 5, ये माइनस नहीं 5 -3 इक्वल टू 1 0 0 1। अब आप कितना दिमाग लगा रहे हैं, तो मैं आपको दे रहा हूँ 2-3 मिनट सोचने के लिए। इसको दूसरे वीडियो में डाल